اس وقت آپ بتائیں کہ معاون خصوصی پنجاب جو ہیں وہ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں گیا کسان کو، جس کے ذریعے 8 لاکھ سے زائد کسانوں نے کسان کارڈ کے ذریعے سے استفادہ کیا، اور جس کا نتیجہ اور جس اس 125 ارب میں انہوں نے کھاد، بیج، پیسٹیسائیڈز، ایون حتیٰ کہ ڈیزل جو ہے اس کی بھی فائدہ کیا. اور ویٹ پالیسی 2026 پنجاب کی، وہ اس طرح سے ایک جامع پلان ترتیب دیا گیا پہلی مرتبہ پنجاب میں اس موجودہ دور حکومت میں، کہ جس کے تحت جو ہمارا کسان ہے اس کی محنت، اس کی اجرت، اس کا منافع یقینی بنایا جائے، اور کسان کی بر وقت جو گندم ہے جب کٹائی کے بعد اس کی فروخت اور اس کو پیسے جو واپس ملنے رقم، اس کا شفاف اور ایفیشنٹ نظام جو ہے وہ مرتب دیا جائے. اس کو یقینی بنانے کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ وہ صوبہ ہے، صوبہ پنجاب، جس کی 13 کروڑ عوام کی جو غذائی تحفظ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے. یہ ایک جامع پلان ترتیب دیا گیا، اور جو کہ یقین دہانی کرتا ہے کسان کی خوشحالی کا، کسان کی بحالی کا اور کسان کی ترقی کا. اور اس کے تحت میں بتانا 26 ہے ہارویسٹ کی، اس کسان کی قیمت کی، کسان کی گندم کی خریداری 3500 روپے فی من پہ ہوگی، اور اس کے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے خریدی جائے گی، اور جو کہ بطور اسٹریٹجک ریزرو ہم جو حکومت جو ہے اس کی نگرانی میں یہ رکھی جائے گی. اور لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ گندم اٹھائے گا کسان سے 3500 روپے فی من پہ، جو تقریباً 212 یا 213 ارب کی خریداری ہے جو ہارویسٹ کے ٹائم پہ کی جائے گی. اس گندم کی خریداری، اس کی جو فائنینسنگ ہے، اس کی سٹوریج، ذخیرہ جو ہے اس کا، اور اس کی جو مارکیٹ کے اندر جب اس کو ریلیز کرنا ہے یا اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ تھرو پرائیویٹ سیکٹر کی جائے گی، اور اس کی نگرانی، فیسیلیٹیشن اور جو اس کی ریگولیشن ہے وہ حکومت کر رہی ہوگی. اور یہ جو میکانزم ترتیب دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ کسان کو اس کا بر وقت منافع یقینی بنایا جائے، ڈسٹریس سیلنگ سے بچایا جائے، اور کسان کے جو پیسوں کی ادائیگی ہے اس کی ٹریسبلٹی کو یقینی بنایا جائے تھرو ڈیجیٹل فارمر پیمنٹ. یہ پہلی دفعہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور یہ جو یہ پہلا صوبہ ہے پنجاب جس نے گندم 2026 کی پالیسی دی، اور یہ وہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جس نے گندم کو جو گورنمنٹ لیڈ مارکیٹ سے نکال کر پرائیویٹ لیڈ پروکیورمنٹ کے نظام میں لے کر گیا ہے. اور جو پرائیویٹ لیڈ پروکیورمنٹ کا نظام ہے یہ شفاف اور یہ کسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یقینی، کسان کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ اسی توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ جو یہ ایک ایسا جدید اور جامع نظام دے رہے ہیں کہ جس میں اپریل مئی رواں سال کے اپریل مئی اور جون کے مہینے میں جو انٹرنیشنل جو ویٹ پرائس ہے اس کی پیریٹی کے مطابق جو ہے 3500 روپے فی من گندم کی قیمت لگائی گئی ہے. جو انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی ہمارے کسان کی کموڈٹی جو ہے گندم جو ہے اس کو اس کے ساتھ کمپیٹیبل بنایا جا سکے اور کمپیٹیٹو بنایا جا سکے. اور اور اس کے ساتھ ساتھ اس گندم کو جو ہم جو اسٹریٹجک ریزرو ہے پنجاب کا اس کے اندر اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس میں 25 لاکھ ٹن تک کی گندم جو ہے وہ رکھی جائے گی، جس کی اوور سائٹ حکومت کے پاس ہوگی، جس کی ریگولیشن جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگی. اور جو پرائیویٹ سیکٹر اس گندم میں ہمارے جو ایگریگیٹر ہوں گے اور جو ہمارے شراکت دار ہوں گے ان کا انتخاب ہم اوپن بیڈنگ کے تھرو کریں گے، شفاف اور جامع انتظام جو اقدام ہے اس کے ذریعے کریں گے. اور ہم ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے اس کا وہ اگلے 1-2 روز جو فلوٹ کیا جائے گا، اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہمارے ایگریگیٹر جو ہوں گے جو شفاف طریقے سے جن کی سلیکشن ہوگی وہ گندم جو ہے وہ حاصل کریں گے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی موڈیلٹی کیا ہوگی، اس کے اندر یہ 3 آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیز کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوگا جس میں حکومت، پرائیویٹ سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر ہوگا. اور یہ جو گندم خریدی جائے گی، پرائیویٹ سیکٹر جو گندم خریدے گا اس کے پیچھے حکومت کھڑی ہوگی، جس میں ان کی جو فائنینسنگ کاسٹ ہے اس کا تقریباً 70% جو ہے فائنینسنگ کاسٹ جو ہے وہ حکومت اپنے ذمہ لے رہی ہے، وہ اٹھائے گی بینکوں کے ذریعے. اور پھر ہمارے جو ویئر ہاؤس ہیں اس کے ساتھ ہم ویئر ہاؤس بھی آؤٹ سورس کریں گے ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ، جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وینچر ہوگا. اور
अंदर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसको हम अपने गोदाम दे रहे होंगे, जो हमारी गंदम उन गोदामों में स्टोर, जो वो गंदम खरीदे और वो गंदम उन गोदामों में स्टोर कर रहे होंगे, और इसकी जो गोदामों की कस्टडी है ये भी जॉइंट कस्टडी होगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की, ताकि हमें पता हो कि जो गंदम है, जो किसान से गंदम उठाई गई है, उसकी स्टोरेज कहाँ पर है। और ये जो 25 लाख के मैट्रिक टन के जो हम वीट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रख रहे हैं, इनका मकसद जो है 2-3 मकासद हैं। सबसे पहले कि किसान को एक कीमत मिले, किसान को डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाया जा सके, किसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दूसरी जानिब अवाम और हमारे जो शहरी हैं, जो गंदम उनकी स्टेपल फूड है, तो अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जिसके जब हमारे यहाँ कोई मुश्किलात आएँ, हमारा कोई शॉर्टफॉल आए जो गंदम के अंदर, तो हम इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ज़रिए उससे उसको अबूर हासिल कर सकें, और मंडियों के अंदर जो कीमतों में डिस्टॉर्शन होती है गंदम की कीमतों में, उसको स्टेबलाइज करने के जो है बरामद होंगे, ताकि किसान का इस्तेसाल ना हो। कोई भी क्लैमिटी या डिजास्टर की सूरत में, शॉर्टफॉल की सूरत में, किसी गैप की सूरत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ये कारामद होगा, और ये किसान की बका के लिए और शहरियों की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करेगा। और तीसरी जानिब हम ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, ये पहला सूबा है पंजाब जिसने मुतारिफ कराया और जो इसको लेकर आया। और जब ये प्रोक्योरमेंट में से गवर्नमेंट निकली, हम अक्सर कहा जाता है कि ये सवाल होता है बहुत ज्यादा कि गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट से निकली तो क्यों निकली। जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती थी तो उसमें बहुत सारे इस तरह की एनोमलीज होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे किसान को उसकी रकम बहुत देर से वापस मिल रही होती थी। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो थी वो इतनी फाल नहीं थी, उसमें जो गंदम का नुकसान होता था, जो गंदम के चोरी के वाकयात होते थे, गंदम के खराब होने के वाकयात होते थे, और हमारे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, जो हम इंटरेस्ट जो बैंकों से लोन लेकर और उसके इंटरेस्ट की सूरत में गवर्नमेंट को अदा करना पड़ता था। अब ये जो नया मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, इसके अंदर पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर कोई भी बोझ नहीं डाला गया, और अवाम के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया गया, और फार्मर को भी उसकी कमोडिटी का मुनाफा बख्श, तसल्ली बख्श जो कीमत है वो दी जा रही है। तो ये एक ऐसा मॉडल पहली दफा मुतारफ कराया जा रहा है हार्वेस्ट 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, कि जिसके अंदर सबके जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है, ताकि सब जो हमारी एंड टू एंड जो हमारी कमोडिटी में शामिल है साइकिल में, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जा सके, प्राइवेट सेक्टर सामने आए, जिसके अंदर हमारी फ्लोर मिल्स हैं, जिसके अंदर हमारे और प्राइवेट सेक्टर के एग्रीगेटर्स हैं, जिसमें हमारे ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने का मौका मिले। ऑल्टरनेट मार्केट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए दिए जाए, लेकिन ये मार्केट साथ साथ बेहंगम भी ना हो, ये मार्केट साथ साथ मादर पिदर आजाद भी ना हो, ये मार्केट उस तरह से काश्तकार का या शहरियों की स्टेपल फूड का इस्तेसाल भी ना कर सके। इसकी आपने मिसाल देखी इस साल के अंदर, अगस्त के महीने में जब सैलाब आया और जब कोई फ्री मार्केट थी बिल्कुल गंदम की, और जब कोई रेगुलेशन नहीं थी, जब कोई ओवरसाइट उस तरह से नहीं थी, तो उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि गंदम की कीमत 2 हफ्ते के अंदर अंदर दुगनी हो गई, और जिसमें किसान का भी इस्तेसाल था, जिसमें शहरी को भी महंगे आटे और महंगी रोटी का सामना हो सकता था, जिस पे वजीर आला ने बर वक्त एक्शन लिया, इस पे क्रैकडाउन हुआ, और हमने अनडिक्लेयर्ड गंदम जो है वो उसको इंपाउंड किया, वागजार की पूरे सूबा भर में। गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर 10,70,000 टन गंदम, इंपाउंडेड गंदम मार्केट में लाई गई, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर ना तो गंदम की शॉर्टेज हुई, ना हमारे नोटिफाइड रेट पे आटे की शॉर्टेज हुई, ना रोटी महंगी हुई, और ना ही किसान का इस्तेसाल होने दिया। और ये वो अमली इकदाम है जो वजीर आला पंजाब ने उठाए, जिसके ऊपर किसान ने इतमाद का इजहार किया, और 16.7 मिलियन एकड़ पर हमारी जो गंदम है वो उगाई गई। अब इसी पॉलिसी के तहत अगला सवाल यह है कि हमारे एग्रीगेटर कौन होंगे, और वो कौन लोग होंगे जो बीच में प्राइवेट सेक्टर जो है वो, उसके साथ हमने पूरा एक उनके लिए आप कह सकते हैं कि पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए पूरी मॉडलिटीज तय की गई हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, कि जो हमारे एग्रीगेटर्स होंगे वो होंगे जो हमारे टैक्स पेयर होंगे, जो हमारी रजिस्टर्ड
जो कंपनीज होंगी पाकिस्तान के अंदर वो होंगे, और फिर जिनके बैंक रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड जो हैं वो बिल्कुल शफाफ होंगे, जिनके माजी के लोन रिकॉर्ड शफाफ होंगे, जिनके पीछे बैंक का ट्रस्ट होगा, और जिनके पीछे टैक्स कलेक्ट करने वाली तमाम अथॉरिटीज का ट्रस्ट होगा, हुकूमत का ट्रस्ट होगा। और हम ये एक ट्राइपार्टाइट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेंगे, और इसके अंदर और इसमें फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वीट के स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद हैं उनको रिलीज कब करना है और कैसे करना है। इसके लिए गुज़श्ता 10 साल का हमने तखमीना लगाया। आपने जो माजी का हमारा डाटा है 10 साल का देखा कि जिसमें सितंबर से लेकर मार्च तक के जो है ये आखिर जो टाइम है जब जो गंदम जो है वो कम होना शुरू होती है, तब इसकी रिलीजेस होती हैं रिवायती तौर पर, और यही वो टाइम होता है कि सितंबर से लेकर मार्च तक जो है हम ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है नॉर्मल हालात में हम इसको उसी वक्त में रिलीज कराएंगे। और इसके साथ साथ हम इसको ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो कंपटीशन लाने के लिए मार्केट में और इसको मोनोपोली को ना बनने दिया जाए, इसका ख्याल करने के लिए हमने और रिजिलियंट मार्केट क्रिएट करने के लिए ये किया कि हम जो अभी जो गंदम बागजार करेंगे, जो खरीदार होंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगी, जो एग्रीगेटर होंगे, उनका जो मिनिमम है वो 0.5% ऑफ दिस अमाउंट जो 25 लाख मेट्रिक टन है, मिनिमम जो प्रोक्योर कर सकेंगे 0.5%, और मैक्सिमम जो है वो 20% ऑफ दिस शेयर ले सकेंगे, ताकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हों और एक प्राइवेट मार्केट जो है वो मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ फ्लरिश करे और कोई भी इसके अंदर मोनोपोली ना हो। इसका एज पर कंटीजेंसी प्लान हमने देखा कि अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से उतना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता तो उसके बाद हम इसके अंदर G2G की गुंजाइश भी रखते हैं। हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी करेंगे, और उसका भी तरीकेकार और उसका भी प्रोसेस और प्रोसीजर तमाम इसी तरह से फॉलो किया जाएगा जैसा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाएगा। फिर उसके अलावा हमने इसको मजीद शफाफ बनाने के लिए ये किया कि हमने इसकी जो ना कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी इसके लिए बनाई गई जो इसकी ओवरसाइट करेगी, और उसके साथ साथ हमने डिविजनल लेवल पे डिविजनल कमेटीज इसकी ओवरसाइट के लिए बनाई हैं, जो कि जिनको कमिश्नर्स हेड कर रहे होंगे, और जिसके अंदर जो हुकूमती जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनके साथ साथ इसमें फार्मर भी होगा, इसमें फ्लोर मिलर भी होगा, इसमें ग्रेन लाइसेंस होल्डर भी होगा। वो इनके डिवीजन लेवल पे इन कमेटीज के स्टेक होल्डर बनाए जाएंगे, ताकि जो गंदम रखी गई है एज स्ट्रेटेजिक रिजर्व ये हमें पता हो, और इसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग की जा रही है कि किस जिले में गंदम की कितनी जरूरत है और कितनी डिमांड है, और वहां पे कितनी गंदम का होना जरूरी है ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मैपिंग के थ्रू ही एग्रीगेटर्स को गंदम स्टोर करने की इजाजत होगी कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में किस किस तवाज़न के साथ गंदम रखी जाएगी। उसकी ओवरसाइट एक डिविजनल कमेटी जिसको हेड कमिश्नर कर रहे होंगे, जिसके अंदर डीसी भी होंगे, जिसमें हमारे डीडी फूड होंगे, डिप्टी डायरेक्टर फूड होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर के नुमाइंदा होगा, जिसमें फार्मर होगा, जिसमें फ्लोर मिलर होगा, जिसमें लाइसेंस ग्रेन लाइसेंस होल्डर होगा। ये सब की मुशावरत से हम इसको जामिया, शफाफ और मुनज़्ज़म प्लान बना रहे हैं, और जिसकी जो हमारे किसान की जब गंदम उठाई जाएगी तो उसको रकम वापस करने के लिए उसका पूरा ट्रेसेबिलिटी निज़ाम हो, और उसको हम डिजिटल पेमेंट का निज़ाम जो है वो मुतारिफ करा रहे हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ इसके जो अहम फीचर्स हैं वो ये हम आपके सामने रखना चाहते थे कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको, और हमने जो इसकी वेयर हाउस की जो आउटसोर्सिंग है उसका भी एक तरीकेकार बनाया है कि उसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलें, उसको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हम इसकी हैंड होल्डिंग करते रहेंगे प्राइवेट सेक्टर की तब तक जब तक कि एक जामिया, मुनज़्ज़म, शफाफ, ऑर्गेनाइज्ड जो प्राइवेट मार्केट जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो जाती, क्योंकि इसको हम बिल्कुल इससे नजर अपनी हटाकर ओझल होकर इसको खुला नहीं छोड़ सकते। ये स्टेपल फूड है, ये 14 करोड़ 13 करोड़ अवाम की 2 वक्त की रोटी है, हर घर की जरूरत है। इसको वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हर घर तक पहुंचाना और कुव्वत खरीद के अंदर रखना हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम निभाते रहेंगे, पूरा करते रहेंगे, लेकिन अपने किसान का फायदा हर मुमकिन यकीनी बनाएंगे। ये कुछ गुजारिशात थी इस पॉलिसी के तहत, क्योंकि बहुत लोग हमसे कांटेक्ट करते थे कि हमारी अगली पॉलिसी क्या होगी, हम जो फूड पॉलिसी है या वीट पॉलिसी है उसको कैसे लेकर आ रहे हैं। तो हम आपके तवज्जुह से ये पॉलिसी आज सब तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा
اپنے خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں لاہور میں. انہوں نے کہا کہ کسانوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مکمل اعتماد ہے. 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.